Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Edmund Spenser's The Fairy Queen is a rich tapestry of adventure and moral instruction. And we are going to discuss The Fairy Queen as an allegory, or we are going to discuss it as allegorical masterpiece. The Fairy Queen, written in the age of Renaissance by Edmund Spenser, it is an allegorical poem that continues to captivate readers with its complex layers of meanings. बहुत सारी लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, इसके अपेरेंट कुछ मीनिंग्स हैं, इसके अंडरलाइन कुछ और मीनिंग्स हैं, इसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं. सो आवर दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द एलिगरिकल स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स एंड थीम्स, revealing the depths and artistry of Spenser's work. So let's discuss today's presentation. First, we are going to decode allegory in The Fairy Queen. Allegory is an extended metaphor. ये एक extended metaphor, it represents abstract ideas through characters and events. Through characters and events हम किसी एक piece of writing के एक से ज़्यादा meanings जो है वो construct करते हैं, find out करते हैं. And it's basically a central device. It is a central device in The Fairy Queen. Each quest has symbolic Christian value. और जितनी भी हम इसके layers of meanings by going through characters and events करेंगे, वो क्रिश्चियन इन वैल्यूज इस तरह से होंगे कि ये क्रिश्चियन एलिगरी है. यानी स्पेंसर ने जब ये लिखा तो ही वाज हैविंग अ क्रिश्चियन मिथोलॉजी एंड सो मेनी डिफरेंट रेफरेंसेस फ्रॉम बाइबल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिगरी and we are going to apply allegory on The Fairy Queen, and most likely it is going to be a Christian allegory. There are 6 virtues presented and discussed in the Bible, and they are unveiled through structure. Number 1 is holiness. Book 1 features Red Cross Knight. He represents the virtue of holiness. सबसे पहला कैरेक्टर जो इस बुक में हमें नजर आया वो है रेड क्रॉस नाइट का. ये सिंबल ऑफ होलीनेस है, पाइटी. सेकंड इज टेम्परेंस. बुक 2 स्टार्स सर गियोन. ही एम्बॉडीज द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस. अदर वर्च्यूज में बुक 3 to 6 हमें इट कवर चेस्टिटी, friendship, justice, and courtesy. Remember, all these 6 virtues are discussed. They are represented through Christian morality, Christian and biblical myths. कुछ characters भी हैं. They are used as symbols. Like Red Cross Knight represents the individual Christian in England. ये एक individual Christian के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं. He is a symbol of Christian morality, and he is the hero, and he is the protagonist of this book. And he also symbolizes England, the one which was facing enmity and conflicts from the surrounding. Yuna represents truth and true church. ये truth और true church को represent कर रही है. उसकी symbol है डोइसा, embodies falsehood and the Roman Catholic Church. ये भी याद रखिएगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि actually there is going to be a conflict between Protestants and Roman Catholic. और ये प्रोटेस्टेंट्स के हक में लिखी गई. डोइसा को यहाँ फॉल्सहुड और रोमन कैथोलिक के तौर पे की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाया गया. लोरियाना शी रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ वन. लोरियाना को क्वीन एलिजाबेथ वन का रूप दिया गया. सो ये वो एलिगरिकल कैरेक्टर्स है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. देयर आर डिफरेंट साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंस. ये आप इसका एक मैप भी दे सकते हैं, एनिमेटेड. मैपिंग द एलिगरी. फेरी लैंड जो है इट रिप्रेजेंट्स एलिजाबेथन इंग्लैंड, अ रेल्म ऑफ मोरालिटी. जब हम फेरी क्वीन, ये क्वीन तो वो जिसकी हम बात करेंगे आगे जाके, तो फेरी लैंड जो है ये एलिजाबेथन इंग्लैंड है, एलिजाबेथ के क्वीन एलिजाबेथ के दौर का इंग्लैंड, एक रेल्म ऑफ मोरालिटी. एरर्स डेन, जो एक ड्रैगन होता है एरर, उसके डेन, इट सिंबलाइजेस द चैलेंज ऑफ ओवरकमिंग फॉल्सहुड एंड लाइज. हाउस ऑफ प्राइड रिप्रेजेंट्स द 7 deadly sins, a place of excess. And bower of bliss symbolizes dangerous immoderate pleasure and temptation. तो जितनी भी इसमें लैंड्स हैं, जिसमें भी इसकी आप सेटिंग कह लें, मैप अगर ड्रॉ करें, तो फेरी लैंड इंग्लैंड को, एरस डेन जो है ये चैलेंजेस को, ख़तरात को, हाउस ऑफ प्राइड जो है ये 7 deadly sins को, जो जिनका जिक्र बाइबल में है. इन बावर ऑफ ब्लिस जो है ये डेंजरस और इमॉडरेट प्लेजर एंड टेम्पटेशन के तौर पे इसमें पेश किया गया है. पॉलिटिक्स एंड फेथ है द सबटेक्स्ट रिवील्ड थ्रू दिस पोएम. कोर्ट क्रिटिक है, कोर्ट के ऊपर, यानी हमने बात की कि ये पॉलिटिकल इन नेचर है, तो कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है. स्पेंसर ऑफर्स
subtle critique. It targets Elizabethan court and society. Of course, Queen Elizabeth के दौर को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है. Religious symbolism at the poem presents Protestant versus Catholic symbolism. I have already told you. Queen's representation is done through Gloriana and Pelphoebe represent. ये जो एक कैरेक्टर है ये क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करता. तो एक इसी एलिग्री में आप याद रखिएगा, जहाँ ये क्रिश्चियन इन नेचर है तो वहाँ पॉलिटिकल इन नेचर भी है. डिकोडिंग स्पेंसर एलिग्रिकल मेथड्स अगर हम इसके बात करें तो फर्स्ट पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई. 7 डेडली सिंस को, डिफरेंट सिंस को के डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू पेश किया गया. सिंबॉलिक क्वेस्ट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो एडवेंचर्स हैं उनको दिखाया गया. मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स दिखाए गए. एक से ज़्यादा जितनी भी सिचुएशंस हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं, और सम ऑफ द डायलॉग्स दे आर ऑल मल्टी लेयर्ड, मोर देन having more than one meanings. So Spencer uses personification of vices. He also shows symbolic crests in battles. There are multi-layered meanings to find. तो आपको हर कैरेक्टर, हर सिचुएशन, हर बैटल, ऑन एवरी स्टेप जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो और सारे एक्शंस के नतीजे में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, दे आर ऑल सिम्बॉलिक. एंड फाइनली we look at this poem and its legacy. Literary impact इसका ये है कि the poem had great impact on English literature. It is a classic and it was later interpreted and used by the coming generations, the coming poets. Active interpretation की गई. The complex allegory encourages interpretation and moral instruction. Of course, it blends moral instruction with poetic artistry. इसमें क्रिश्चियन morality का जिक्र है, इसमें morality का ओवरऑल जिक्र है, इसमें यूनिवर्सल morality है, इसमें कुछ यूनिवर्सल वर्चूज़ का जिक्र है. तो इट हैज़ गॉट अ यूनिवर्सल मॉरल इंस्ट्रक्शनल एलिमेंट टू. सो यहाँ पर हमारा ये एक ब्रीफ सा लेक्चर ऑन इट्स एलिग्रिकल सिग्निफिकेंस ख़त्म होता है. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा. इफ़ यू वांट टू कमेंट, मोस्ट वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.